So, very good evening, all the participants. Today, let us study the provisions regarding this voluntary liquidation. Now, in voluntary liquidation, please tell me how it is different from normal liquidation, or it is same. Pooja ji, any idea about this? What are the major variations? दूसरे लिक्विडेशन में सर डिफॉल्ट होता है, इसमें विदाउट एनी डिफॉल्ट भी अगर कॉर्पोरेट डेटर खुद चाहे तो वो वॉलेंट्री लिक्विडेशन में जा सकता है. Right. This is one. Second, this is one major difference regarding default. So, one can avail the option of voluntary liquidation only when there is no default and the company is able to pay its debts in full. Second, regarding the role of adjudicating authority. So, role of adjudicating authority here is minimum. Any other change regarding mode of sale also, regarding submission of reports, for everything it has to be done as per the guidance of the corporate person. And who will appoint the liquidator in case of voluntary liquidation? कॉर्पोरेट डेटर ही करेगा. Right, corporate person through shareholders approval, they will appoint the liquidator. And who can remove it or who can reappoint it, replace it? सर अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही रिप्लेस भी कर सकते हैं. Right, so only the corporate person will be able to replace it. So here the interference of the adjudicating authority is minimum. Adjudicating authority is approached only in emergency situation, like the company is not able to pay its debts in full, or a fraud is being played on the company by the corporate person, then the liquidator may report this thing. So very limited role of adjudicating authority. But other provisions regarding liquidation, they are equally applicable in case of voluntary liquidation. Another very important thing is only one section is there, section 59, and it deals with the voluntary liquidation of company basically, and in regulations they are covering persons other than company. So section 59, with this basic understanding, let us start. I think my screen is visible. Is it visible? Yes sir. So section 59, what it says, a corporate person who intends to liquidate itself voluntarily and has not committed any default. Now suppose a company had incurred a default 2 years ago, whether it can go in for voluntary liquidation, and that default was made good. The company incurred a default, say 2 years ago, and that default was made good. Payment was made. And now, after 2 years, the company wants to go in for voluntary liquidation. Whether it can go in? Because the word used is any default. So yes, the company can go in for voluntary liquidation if it is otherwise solvent as on the date of this declaration. So a corporate person who intends to liquidate itself voluntarily and has not committed any default may initiate voluntary liquidation proceedings under the provisions of this chapter. The voluntary liquidation of a corporate person under subsection 1 shall meet such conditions and procedure requirements as may be specified by the board. Recording on किया है कि नहीं किया? Recording on है ना? हाँ जी सर. Okay. Without prejudice to subsection 2, voluntary liquidation proceedings of a corporate person registered as a company shall be, so it could be either a company or an LLP or other body corporate. So regarding company, they are explaining here, but regarding persons other than companies, so they will be describing the regulations. So declaration from majority of the directors of the company verified by an affidavit. So whether this declaration is from special majority or ordinary majority? Declaration. Whether it is 51% majority, 66, 75, what is the percentage? The ordinary majority. Ordinary majority. Declaration from majority. Majority of the directors of the company verified by an affidavit stating, just a minute.
Yes. So, voluntary liquidation proceedings of a corporate person registered as a company shall meet the following conditions, namely declaration from majority of the directors of the company verified by an affidavit. So, majority here means simple majority. Whether there is any format of affidavit which is given? No, sir. No, there is no such format. So it could be an ordinary affidavit stating that they have given the contents, that what they will write in the affidavit. They have made a full inquiry into the affairs of the company and they have formed an opinion that either the company has no debt or that it will be able to pay its debts in full. So there are two things, either the company is debt free or it will be able to pay its debts in full from the proceeds of assets to be sold in the voluntary liquidation. Right? And the company is not being liquidated to defraud any person. So there is no intention of defrauding any person. So these are the things to be given in the affidavit. And the declaration under subclause A shall be accompanied with the following documents. So what they will enclose: audited financial statements and record of business operations of the company for the previous 2 years or for the period since its incorporation, whichever is later. Audited financial statements we understand. But what is this record of business operations? What you will include in the record of business operations? हाँ जी, एनी आइडिया? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस में क्या लगाएंगे? कुछ तो लगाएंगे ना, बोला है तो क्या होगा उसमें? Sir, a general note with regard to what have been the business carried on in the last 2 years. Right. And So the we can give some figures regarding production, marketing, sales, etc. What are the various segments in which it is operating, where the plants are located, etc., etc. है ना? For the previous 2 years or for the period since its incorporation, whichever is later. A report of the valuation of the assets of the company, if any, prepared by a registered valuer. Whether this valuation report is necessary or not. What is the meaning of if any here? It says It's optional, sir. Not mandatory. it is mandatory, but if there are no assets in the company, then valuation is not required. Okay. There could be a case where on the left hand side is the share capital and on the right hand side is the accumulated losses, or only cash and bank balances. So for cash and bank balances, valuation is not required. Yes. So if there are assets, then valuation is required. If there are no assets, then valuation is not required. Simple. Within 4 weeks of the declaration under subclause A, there shall be. So there are two things, either a special resolution or a resolution. Sometimes the company is being formed for a specific duration or for a specific purpose. Like suppose you are executing a construction project. So you want to isolate the profitability or the litigation relating to that project, confined to that project only. So what you do, you float a separate company for that purpose and you say that as soon as the construction is complete, this company shall be liquidated. So that is the company formed for a specific duration or for a specific purpose. So if such is the case, then resolution of the members of the company in general meeting. Otherwise, ordinarily, if there is no such thing, articles do not provide for any such thing, then a special resolution of the members of the company in a general meeting, requiring the company to be liquidated voluntarily and appointing an insolvency professional to act as the liquidator. So two things, what they will do, they will say that okay, the company is to be liquidated voluntarily and appointing an insolvency. Suppose there are 3 directors in the company, right? Suppose there are 4 directors in the company. Out of them, one has already resigned. Now there are only 3 directors in the company. And those 3 are the only shareholders in the company. But 2 are going in a particular direction and the third just goes in the opposite direction. Suppose
two of the directors, they float any resolution, then the third will be the first one to oppose that. So in that case, do you think the company will be able to voluntarily liquidate itself? Yes, sir. The answer is no. Because special resolution कैसे पास होगा? Majority directors affidavit तो दे देंगे, but they are the only shareholders of the company. अब 3 ही शेयर होल्डर है कंपनी में, 3 अगर शेयर होल्डर हैं तो तीनों के पास 1/3 शेयर कैपिटल है, तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन विच दे नॉर्मली आस्क इन द एग्जामिनेशन. Yes, sir. Just to confuse you, so they 75. will first say that okay, there are 4 directors and then one of them left and his share was equally divided, so now there are only 3. So whether they will be able to voluntarily liquidate, the answer will be probably no, because special resolution they will not be able to pass. Declaration तो हो जाएगा, but special resolution कैसे होगा? Special resolution तो 75% majority 75%. Right, sir. है ना. तो special resolution of the members of the company in a general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily and appointing an insolvency professional to act as the liquidator, or a resolution of the members of the company in a general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily as a result of the expiry of the period of its duration. So if articles provide that okay, after this duration, after say 5 years the company shall be liquidated, then ordinary resolution is sufficient. ठीक है. Or on the occurrence of any event in respect of which the articles provide that the company shall be dissolved, say on the completion of a project, as the case may be, and appointing an insolvency professional to act as the liquidator. Right? Provided that the company owes any debt to any person, creditors representing 2/3 in value of the debt of the company shall approve the resolution passed under subclause C within 7 days of such resolution. So then, creditors representing 2/3 in value of the debt of the company shall approve the resolution passed. And they say 2/3 in value. So they have made it very clear, 2/3 in value, right? The company shall notify the registrar of companies and the board about the resolution. So who are to be informed? Registrar of companies and the board. So adjudicating authority is not informed about this resolution under subsection 3 to liquidate the company within 7 days of such resolution or the subsequent approval by the creditors as the case may be. Right? Subject to approval of the creditors under subsection 3, the voluntary liquidation proceedings in respect of a company shall be deemed to have commenced from the date of passing of the resolution under subclause C of subsection 3. Now, first of all, what we will ensure? We will ensure that okay, there is no default, company is able to pay its debts in full, or it will realize the assets and it will be able to pay. So the company is otherwise solvent. Then next point we have to see whether it was formed for a specific purpose. So in that case, ordinary resolution. तो पूजा जी इस पर एक ना एक फ्लो चार्ट बना दीजिएगा. Okay, sir. है ना, एक फ्लो चार्ट बना दीजिएगा, सभी इसको हेल्प हो जाएगी उस पर. तो सबसे Right. पहला पॉइंट अपने को क्या देखना है? सबसे पहले तो हमें देखना है कि भाई Default. ये क्या है. पहले तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखना है. ठीक है, कंपनी है या फिर एलएलपी है या अदर बॉडी कॉर्पोरेट. कंपनी है तो यहाँ पर सेक्शन 59 के प्रोविजंस लगेंगे, और अगर एलएलपी या वो है तो फिर उस केस में हमें रेगुलेशंस पर जाना है. उसके बाद में हमें देखना है कोई डिफॉल्ट तो नहीं है. ठीक है, और डिफॉल्ट किस डेट को देखना है? ऑन द डेट ऑफ मेकिंग द डिक्लेरेशन, नेचुरली, है ना. उसके डिफॉल्ट नहीं है तो ठीक है, आपका ये हो गया, आपका डिक्लेरेशन हो गया फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स. फिर एक रेजोल्यूशन पास करना है. रेजोल्यूशन पास करने के लिए आपको देखना है पहले आपको कि भाई वेदर इट वाज फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन और फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, है ना. उस केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अदरवाइज स्पेशल रेजोल्यूशन. फिर अगर क्रेडिटर्स भी हैं कंपनी में तो क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू दे शैल आल्सो अप्रूव द रेजोल्यूशन. नाउ सपोज देखो डिक्लेरेशन भी पास हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन भी हो गया, बट क्रेडिटर्स ने अप्रूव नहीं किया तो क्या होगा? सर फिर नहीं हो सकती हाँ, वॉलंटरी. फिर नहीं हो सकता. ठीक है, लेकिन पॉइंट नंबर 5 देखते हैं. सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द क्रेडिटर्स अंडर सबसेक्शन 3, द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव कमेंस्ड. तो ये डीमिंग फिक्शन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई लिक्विडेशन ऑर्डर पास नहीं हो रहा. अनलाइक सेक्शन 33. सेक्शन 33 में क्या होता है? लिक्विडेशन ऑर्डर पास होता है. यहाँ कोई लिक्विडेशन ऑर्डर पास नहीं हो रहा. तो एक डीमिंग फिक्शन है कि भाई इट इज डीम्ड टू हैव कमेंस्ड. कौन सी डेट से?
फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन अंडर सब क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 3। ये सब क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 3 क्या है? ये जो रेजोल्यूशन है हमारी स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कुछ लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि जो क्रेडिटर्स अप्रूव करेंगे रेजोल्यूशन को उस डेट से नहीं है। कौन सी? वो जो डेट हमारी है ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन, ठीक है, वही हमारी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट है। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35 टू 53, ये ध्यान रखिए यहां पर क्या है, इट हैज नॉट बीन मेड सब्जेक्ट टू सेक्शन 33 या 34। भाई हमारा ऑर्डिनरी लिक्विडेशन कहां से शुरू हो जाता है? सेक्शन 33 33 से। यहां पर क्या कह रहा है? 35 से। इसका मतलब 33 और 34 इस पर एप्लीकेबल नहीं है। क्या यहां पर मॉरेटोरियम लगेगा? यहां कोई कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरेटोरियम नहीं है, ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर के अलग राइट है, ऐसा कुछ नहीं यहां पर, ठीक है। तो 35 टू 53 लगेगी, ठीक है। ऑफ चैप्टर 3 एंड चैप्टर 7 शेल अप्लाई टू वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस। एक और बात बता दीजिए, अगर लिटिगेशन पेंडिंग है तो क्या वॉलंटरी लिक्विडेशन हो सकता है? एक कंपनी है जिसके अगेंस्ट में कोर्ट केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, तो क्या वॉलंटरी लिक्विडेशन हो जाएगा या नहीं होगा? तो हो सकता है डायरेक्टर्स जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं उसमें ये हाँ, देख सकते हो हैं कि जाएगा, they'll be able to। क्योंकि इवन जो क्लोजर रिपोर्ट जाएगी लास्ट में हम देखते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन में, जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हैं तब भी देते हैं अगर कोई लिटिगेशन पेंडिंग है तो उस रिपोर्ट में भी उसका रेफरेंस जाता है, जो फॉर्मेट में रिपोर्ट जाती है। Where the affairs of the corporate person have been completely wound up and its assets completely liquidated, the liquidator shall make an application to the adjudicating authority for the dissolution of such corporate persons, ठीक है। अच्छा, वॉलंटरी लिक्विडेशन में भी क्या वेदर यू कैन सेल इट एज ए गोइंग कंसर्न या नहीं? नो सर। यहां ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां डिसोल्यूशन होना ही होना है, ठीक है। The adjudicating authority shall, on an application filed by the liquidator under subsection 7, pass an order that the corporate debtor shall be dissolved from the date of that order, and the corporate debtor shall be dissolved accordingly. And a copy of an order under subsection 8 shall, within 14 days from the date of such order, be forwarded to the authority with which the corporate person is registered. ठीक है, तो ये हमारा था सेक्शन 59। तो सेक्शन 59 में बेसिक बेसिक बातें हमने पढ़ ली, ठीक है। अब हम एक बार इसके रेगुलेशंस देख लें। रेगुलेशंस क्या कहते हैं? सर आपने ये बताया कि कंट्रीब्यूटरी, कंट्रीब्यूटरी कौन है? कंट्रीब्यूटरी मीन्स ए मेंबर ऑफ ए कंपनी, पार्टनर ऑफ LLP and any other person liable to contribute towards the assets of the corporate person in the event of its liquidation, ठीक है। कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट, वहां पर क्या होता है हमारा? वहां कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट होता है, यहां पर क्या है? कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट, ठीक है। मीन्स द कॉर्पोरेट वॉलंटरी, अगर इसमें से कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड्स या अनक्लेम्ड प्रोसीड्स रह जाएंगे तो वो यहां पर चले जाते हैं, ठीक है। जैसा लिक्विडेशन अकाउंट से मिलता जुलता ही है। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट मीन्स द डेट ऑन विच द प्रोसीडिंग्स फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंस एज पर सेक्शन 59(5), ठीक है। 59(5) में हमने पढ़ लिया अभी। 59(5) क्या बोलता है? डेट ऑफ पासिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन, ठीक है। रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या फिर ऑफ द LLP और द अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रिंग द एक्ट। Stakeholders mean the stakeholders entitled to proceeds from the sale of liquidation process. Now initiation of liquidation, एक तो हमने पढ़ा कहां? सेक्शन 59 में, और एक यहां पढ़ रहे हैं हम रेगुलेशन 3 में। क्या बोलता है? विदाउट प्रेजुडिस टू सेक्शन 59(2), क्योंकि वहां 59(2) में क्या बात करके आया? ये कंपनी के बारे में, ठीक है। अब यहां क्या कहता है? लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ ए कॉर्पोरेट पर्सन शैल मीट दी फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। अब यहां पर भी कॉर्पोरेट पर्सन बोल रहा है, लेकिन आप देखोगे कि यहां कॉर्पोरेट पर्सन में वो बेसिकली LLP या इंडिविजुअल्स को कवर कर रहा है। और इसके ये बारे में कहां लिखा है? वो लिखा है यहां पर, आपका ये देखोगे आप यहां, ये एक्सप्लेनेशन में, फॉर द पर्पज ऑफ सब रेगुलेशंस 1 to 3, लास्ट में क्या लिखा है? फॉर द पर्पजेज ऑफ सब रेगुलेशंस 1 to 3, कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स ए कॉर्पोरेट पर्सन अदर देन ए कंपनी,
ये मतलब नहीं कि कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स से कॉर्पोरेट पर्सन अदर देन ए कंपनी, बट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सब रेगुलेशंस 1 to 3। तो सब रेगुलेशंस 1 to 3 में ये कह रहा है कि भाई कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स ए कॉर्पोरेट पर्सन अदर देन ए कंपनी। क्यों? कंपनी के बारे में इसने पहले ही बात कर ली सेक्शन 59(2) में। ठीक, तो विदाउट प्रेजुडिस टू सेक्शन 59(2), liquidation proceedings of a corporate person shall meet the following conditions, namely declaration from majority of the designated partners। अब यहां पर क्या है, यहां ये कहता है majority of the designated partners। सारे पार्टनर्स का नहीं चाहिए एलएलपी में। एलएलपी में सपोज 100 पार्टनर्स हैं, तो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का ही डिक्लेरेशन चाहिए। ठीक है, और इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द गवर्निंग बॉडी इन केस ऑफ अदर कॉर्पोरेट पर्संस। ठीक है, majority as the case may be verified by an affidavit। क्या होगा? That they have made a full inquiry into the affairs of the corporate person and they have formed an opinion that either the corporate person has no debt or that will be able to pay its debts in full from the proceeds of assets to be sold in the liquidation, and the corporate person is not being liquidated to defraud any person। and तीसरा पॉइंट भी इंक्लूड कर दिया, the corporate person has made sufficient provision to meet the obligations arising on account of pending matters mentioned in sub clause 3 of clause B। ठीक है, मतलब अगर कोई पेंडिंग मैटर्स है तो उस केस में आपने उसके लिए भी सफिशिएंट प्रोविजन कर दिया है। बेसिकली अगर कोई लिटिगेशन पेंडिंग है। ठीक है, द डिक्लेरेशन अंडर सब क्लॉज ए शैल बी। अब आप ये देखोगे यहां थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा होगा आपको, ये रेगुलेशंस में चेंज कर दिया है ना, लेकिन एक्ट में चेंज नहीं किया। ये वाली बात वहां तो लिखी नहीं है, दैट द कॉर्पोरेशन पर्सन हैज मेड सफिशिएंट प्रोविजन टू मेट द ऑब्लिगेशंस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ पेंडिंग मैटर्स, है ना। ये बात सेक्शन में नहीं लिखी, यहां लिख दी वो, इसीलिए क्योंकि एक्ट में चेंज नहीं हुआ। द डिक्लेरेशन अंडर सब क्लॉज ए शैल बी कंप्लीट विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, नेमली क्या लगाना आपको, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and record of business operations of the corporate person for the previous 2 years or for the period since its corporation, whichever is later, a report of the valuation of the assets of the corporate person, if any, prepared by a registered valuer, and disclosure about pending proceedings or assessments before statutory authorities and pending litigations in respect of the corporate person। ठीक है, तो यहां पर भी आपको आंसर मिल गया कि अगर कोई लिटिगेशन पेंडिंग भी है तो भी वॉलंटरी लिक्विडेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिर्फ इसको एक डिक्लेरेशन देना है, क्या, जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स या असेसमेंट्स हैं बिफोर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एंड पेंडिंग लिटिगेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन। और ये पेंडिंग लिटिगेशन वाला इश्यू जो है लास्ट में भी कवर होता है, जहां पर क्लोजर रिपोर्ट ये देता है। Within 4 weeks of a declaration, so there could be a stage where voluntary liquidation is complete but litigation is still going on। Within 4 weeks of a declaration, ठीक है, अंडर सब क्लॉज है देयर शैल बी। अब 4 हफ्ते के अंदर क्या करना है, ये जो 4 वीक्स वाली बात है, ये बात आपके सेक्शन में भी है। ठीक है, सेक्शन में भी सेम टाइमलाइन है, विद इन 4 वीक्स ऑफ डिक्लेरेशन। अंडर सब क्लॉज है क्या होगा, एक रेजोल्यूशन होगी पास्ड बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। अब वहां पर तो लिखा स्पेशल रेजोल्यूशन, यहां लिखा रेजोल्यूशन पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। तो क्या फर्क है, कोई फर्क है या सेम चीज है? जब हमने सेक्शन पढ़ा, सेक्शन में लिखा स्पेशल रेजोल्यूशन, यहां लिख रहे हैं रेजोल्यूशन पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। सो वेदर इट इज द सेम थिंग और इट इज डिफरेंट। तो वो मेंबर्स पास करेंगे, यहाँ पार्टनर्स हैं। नहीं वो तो ठीक है, बट कोई फर्क है या एक ही बात है? डिफरेंट है। वहां पर क्या है, वहां शेयर कैपिटल के हिसाब से है, यहां पर क्या है, यहां नंबर के हिसाब से है। यहां आपको शेयर कैपिटल नहीं देखनी, कैपिटल नहीं देखनी पार्टनर्स की, आपको यहां नंबर देखना है। जैसे मान लीजिए आपके 10 पार्टनर हैं, तो आपको 8 पार्टनर की रेजोल्यूशन होनी चाहिए। और एक और बात, यहां डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं लिखा, डिक्लेरेशन तो डेजिग्नेटेड पार्टनर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अप्रूवल कौन कर रहे हैं, पार्टनर्स। ठीक है, तो वहां पर वो शेयर, जब हम स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन
उसका रेफरेंस कहाँ है? उसका रेफरेंस है आपका शेयर कैपिटल पे। क्योंकि जब हम एमजीटी 14 फाइल करते हैं तो लिखते हैं ना कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स प्रेजेंट एंड देयर वोटिंग शेयर। तो बेसिकली वो जो परसेंटेज है वो वोटिंग शेयर से डिसाइड होती है, नंबर से नहीं डिसाइड होती। यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ नंबर से डिसाइड होगा एलएलपी की केस। ठीक है, ये इस पे भी सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में। A resolution passed by a special majority of the partners or contributaries, as the case may be, of the corporate person, requiring the corporate person to be liquidated and appointing an insolvency professional to act as the liquidator. ये बातें आपको नोट कर लेनी चाहिए अलग से, ताकि आपको एग्जाम टाइम में याद रहे, कभी पूछ भी सकते हैं इस बारे में। ठीक है, और ए रेजोल्यूशन ऑफ द पार्टनर्स और कंट्रीब्यूटरीज, वैसे तो मैंने मटेरियल जो दिया है आपको उसमें कवर किया है ये बात। ए रेजोल्यूशन ऑफ द पार्टनर्स और कंट्रीब्यूटरीज एज द केस में बी, रिक्वायरिंग द कॉर्पोरेट पर्सन टू बी लिक्विडेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए या स्पेसिफिक पर्पज के लिए है तो फिर उसमें इसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, अदरवाइज आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, और नंबर पे बेस्ड होगा, और यहाँ पार्टनर्स है, डिक्लेरेशन में आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्ट। ठीक है, ऐसे ही वहां पर कंपनी के केस में डिक्लेरेशन वो आपके डायरेक्टर्स का है, और जो रेजोल्यूशन है वो मेंबर्स का। Provided that the corporate person owes any debt to any person, creditors representing 2/3 in value of the debt of the corporate person shall approve the resolution passed under subclause C within 7 days of such resolution. ठीक है, ये क्रेडिटर रिप्रेजेंटिंग 2/3 क्यों लिखा इन्होंने? क्रेडिटर्स हैविंग 2/3 लिख देते, रिप्रेजेंटिंग लिखा मतलब वर्ड लिखा ना, क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू, तो रिप्रेजेंटिंग क्यों लिखा है? वो क्रेडिटर कंपनी भी हो सकती है ना, और इस तरह से कुछ भी हो सकता, कोई एचयूएफ भी हो सकती है, तो इसलिए वर्ड उन्होंने लिख दिया रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन। ठीक है, द कॉर्पोरेट पर्सन शैल नोटिफाई द रजिस्ट्रार एंड द बोर्ड अबाउट द रेजोल्यूशन। ठीक है, अंडर सब रेगुलेशन 1 टू लिक्विडेट द कॉर्पोरेट पर्सन within 7 days of such resolution or the subsequent approval of the creditors as the case may be. ठीक है, subject to approval of the creditors under sub regulation 1, the liquidation proceedings in respect of a corporate person shall be deemed to have, कोई deeming fiction, कौन सी deeming fiction है? From the date of passing of the resolution। ठीक है, और ये resolution कौन सी है? वो resolution passed by special majority या resolution। ठीक है, एंड फॉर द पर्पज ऑफ सब रेगुलेशन 1 to 3, ये मैंने पहले बता दिया आपको, ए कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स ए कॉर्पोरेट पर्सन अदर देन ए कंपनी। ठीक है, ये मतलब नहीं कि कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स ए कॉर्पोरेट पर्सन अदर देन ए कंपनी, सिर्फ इन रेगुलेशंस के पर्पस के लिए, सिर्फ सब रेगुलेशन 1 to 3 के पर्पस के लिए ये है। ठीक है, वो क्यों लिख दिया? क्योंकि कंपनी इन्होंने 59(2) में कवर कर दी। Sir, in this case, this would include both related and unrelated parties when it comes to debt. यस यस यस, हाँ, इसमें कोई डेट और here there is no question of related party or unrelated party because they have to pay the entire debt. They are voluntarily liquidating the company, so naturally a debt is a debt. They don't have to decide. No, here the corporate person will decide. Actually, all the things will be decided by the corporate person only. तो यहाँ ऐसा कोई फंडा नहीं है। The declaration under sub-regulation 1A or under section 59(3)(a) shall list each debt of the corporate person. तो आपको क्या करना है? डिक्लेरेशन में हर एक डेट एक लिस्ट लगानी है पूरी, each debt of the corporate person as on that date, and state that the corporate person will be able to pay all its debts in full from the proceeds of assets to be sold in the liquidation। ठीक है, तो डिक्लेरेशन में आपने क्या क्या लगा दिया? पेंडिंग लिटिगेशन भी लगा दिया, ईच डेट भी लगा दिया, ये भी लगा दिया कि भाई इट इज नॉट बीइंग डन टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। The declaration under sub-regulation 1A or under section 59(3)(a) shall provide that the corporate person has made provision for preservation of its records after its dissolution। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में भी आपने यहां पर लगा दिया। ठीक है, डिक्लेरेशन में ये भी देना है।
कि भाई वॉलेंटरी लिक्विडेशन के बाद में भी यू विल प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स। ठीक है। इफेक्ट ऑफ लिक्विडेशन, the corporate person shall from the liquidation commencement date cease to carry on its business except as far as required for the beneficial winding up of its business। क्योंकि यहां पर कोई गोइंग कंसर्न वाला फंडा नहीं है, ठीक है, ना यहाँ पर कोई स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 द कॉर्पोरेट पर्सन शैल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अंटिल इट इज डिसॉल्व्ड अंडर सेक्शन 59(8)। ठीक है। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, तो कौन अपॉइंट कर रहा है लिक्विडेटर को? कॉर्पोरेट पर्सन। ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अभी पता भी नहीं है कि लिक्विड वॉलेंटरी लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया, अभी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कोई इंटीमेशन नहीं है। आपने किसको इन्फॉर्म किया है? रजिस्ट्रार एंड बोर्ड सर। राइट, आपने रजिस्ट्रार को और बोर्ड को इंफॉर्मेशन दी है कि भाई ये वॉलेंटरी लिक्विडेशन कमेंस हो गया। सब्जेक्ट टू रेगुलेशन 6 the corporate person shall appoint an insolvency professional as liquidator and wherever required may replace him। तो कौन अपॉइंट कर रहा है? कॉर्पोरेट पर्सन। ठीक है। और रिप्लेस भी वही कर सकता है by appointing another insolvency professional as liquidator by resolution passed under clause C of subsection 3 of section 59 और clause C of subregulation 1 of regulation 3 as the case may be। ठीक है। कोई स्पेशल रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन। ठीक है। provided that such a resolution shall contain the terms and conditions of appointment of the liquidator including the remuneration payable to him। बेसिकली शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट कर लिया उसको, है ना, या पार्टनर्स ने अपॉइंट कर लिया। The insolvency professional shall within 7 days of his appointment as liquidator intimate the board about such appointment। अब जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है ये इन्फॉर्म कर रहा है विद इन 7 days किसको? बोर्ड, अबाउट हिज अपॉइंटमेंट। नाउ एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज लिक्विडेटर। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी वही है जो बाकी जगह सब जगह दी हुई है लिक्विडेशन में, है ना। यस सर। 10% है, CIRP में 5% है, लीगल या कंसल्टिंग फॉर्म यहाँ पर 10% है, बाकी सारी बातें सेम है। ठीक है। चलिए, लिक्विडेटर्स रिमनेशन, जो रिमनेशन पेएबल होगी टू द लिक्विडेटर इट शेल फॉर्म पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन कॉस्ट। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लिक्विडेटर, अब इसके पावर्स क्या है? रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग किसको करेगा आपके हिसाब से? ये किसको रिपोर्टिंग करेगा? सर कॉर्पोरेट हाँ पर्सन को ही करेगा सर। हाँ बिल्कुल। क्या क्या बनाना है इसको? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट, minutes of consultation with stakeholders and final report in the manner specified in these regulations। Subject to other provisions of these regulations, the liquidator shall make the reports and minutes referred to sub-regulation 1 available to a stakeholder in either electronic or physical form on receipt of। ठीक है। तो stakeholders को ये report देगा if they apply in writing cost of making such reports and an undertaking regarding confidentiality। ठीक है। सबसे पहले आती है हमारी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आपने किसको देनी है? कॉर्पोरेट पर्सन को। द लिक्विडेटर शैल सबमिट ए प्रिलिमिनरी रिपोर्ट टू द कॉर्पोरेट पर्सन विद इन 45 days फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट detailing the capital structure of the corporate person, the estimates of its assets and liabilities as on the liquidation commencement date based on the books of the corporate person। ठीक है। Provided that if the liquidator has reason to believe to be recorded in writing that the books are not reliable, he shall also provide estimates based on reliable records and data otherwise available to him। ठीक है। Whether he intends to make any further inquiry into any matter relating to the promotion, formation or failure of the corporate person or the conduct of the business thereof। ठीक है। तो यहीं पर पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में बता देगा कि भाई कोई इंक्वायरी करना चाहता है क्या, and the proposed plan of action for carrying out the liquidation, including the timeline within which he proposes to carry it out and the estimated liquidation cost। तो ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ये कॉर्पोरेट पर्सन को बता देगा which has to be prepared within 45 days। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ है क्या? पब्लिक अनाउंसमेंट होगा क्या? क्या होगा पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में? हाँ जी, पब्लिक अनाउंसमेंट होगा नहीं होगा?
भाई जितने भी डेट है, सर क्लेम्स तो मंगवाने हाँ, हैं। नहीं क्लेम क्लूम कुछ नहीं मांगने इसमें। भाई कॉर्पोरेट डेटर को पता ही है, और ये भी वो कह रहा है, वो फ्रॉड वाले में कवर कर लिया ना उन्होंने। उन्होंने कह दिया भाई इट इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, और बाकी लिटिगेशन पेंडिंग होगा तो होगा। रिपोर्टिंग, ये हो गया प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। रजिस्टर्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट, वेयर दी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन आर इनकम्प्लीट। ठीक है, ऑन द लिक्विडेशन commencement date the liquidator shall have them completed and brought up to date with all convenient speed। ठीक है, कोई ऐसा पीरियड नहीं लिखा, विद ऑल कन्वीनियंट स्पीड। और क्या क्या बुक्स बनानी है ये सब लिखा हुआ, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ये सारे रजिस्टर आपको बनाने हैं। सर अगर कंपनी नॉन ऑपरेटिव है और उनके पास में पुराने 3-4 साल पहले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो क्या लिक्विडेटर के मैंडेटरी है ये बनानी फिर से? तो बनानी ही है। बना ही ना सके तो सर अगर कंपनी नॉन ऑपरेशनल है। नहीं नहीं देखिए, ऐसा होता है, कंपनी चाहे नॉन ऑपरेशनल हो, बैंक अकाउंट तो होगा ना उसका। बैंक अकाउंट नहीं होगा तो बैंक अकाउंट लेगा वो। वॉलंटरी लिक्विडेशन में देखो, पहले सबसे पहले तो अपॉइंट कौन कर रहा है उसको, शेयर होल्डर्स ही तो अपॉइंट कर रहे हैं ना। जी। वो शेयर होल्डर अपॉइंट कर रहे हैं, वो बैंक डिटेल्स तो लेगा ही। और वो तो डिक्लेरेशन में ही दे दिया ना उसने। आप इसको सेक्शन यहां से 59 से हम स्टार्ट किए थे, तो 59 में क्या बोला था, डिक्लेरेशन में क्या देना है उसको, ये देखिए, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी फॉर द प्रीवियस 2 years। तो 2 साल का तो ऑडिट कराने के बाद ही प्रोसेस शुरू करना है ये। हम्म। और फॉर द पीरियड सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन विच एवर इज लेटर। ठीक है, तो 2 साल के आपको ऑडिट तो कराना ही पड़ेगा, उसके बाद ही शुरू करोगे आप। तो ये नॉर्मल लिक्विडेशन अगर हो, क्या? उस केस में अगर अवेलेबल नहीं है लिक्विडेटर के पास, पुरानी 3-4 साल पहले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और कंपनी भी नॉन ऑपरेशनल है। भाई ऐसा होता है, वो ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं, ऑडिटर अपने आप रिकॉर्ड निकालेगा। वहां तो पब्लिक अनाउंसमेंट भी होता है ना, वहां चीजें दूसरी हैं। ओके सर। नॉर्मल लिक्विडेशन में तो वो क्या होगा, वहां वो पब्लिक अनाउंसमेंट होगा, पब्लिक अनाउंसमेंट में क्लेम आ जाएंगे। लोग अपने आप ही प्रूफ देंगे, मैंने इस कंपनी को इतने पैसे दे रखे हैं, मैंने ये सर्विसेज दे रखी हैं। बैंक अकाउंट होगा, बैंक से डिटेल ले लेगा, और उसके पास पावर्स है पूरी लिक्विडेटर की, है ना। डिपॉजिटरी से ले सकता है, एमसीए से रिकॉर्ड ले सकता है, सारी पावर्स है वहां से सबसे ले सकता है अगर कुछ है तो कंपनी के पास। वहां तो चीजें डिफरेंट है ना। वहां तो अगर बुक्स नहीं भी है, तो अगर क्लेम आ रहे हैं उसके, और वो क्लेम में प्रूफ लगा रहे हैं कि देखो जी हमने ये सर्विसेज रेंडर की हैं कंपनी को, या ये गुड सप्लाई किए हैं, या ये डेट दिया है, तो वो उस बेसिस पे बुक्स बना लेगा, बुक्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यस सर। ये हो गया। अच्छा, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हो गया। रजिस्टर्स ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स हो गया। उसके बाद में एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। ये रजिस्टर्स के लिए इन्होंने फॉर्मेट भी दे रखा है शेड्यूल 2 में। ठीक है, उसके साथ उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है। द लिक्विडेटर शैल कीप रिसीट्स फॉर ऑल पेमेंट्स मेड और एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। ठीक है, एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, तो लिक्विडेटर में एंगेज प्रोफेशनल्स टू असिस्ट हिम इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, obligations and functions for a reasonable remuneration, and such remuneration shall form part of the liquidation cost। अभी देखो, ये जो प्रोफेशनल्स को एंगेज करने की जिम्मेदारी किस पर लगाई है, लिक्विडेटर पर। ठीक है, यहां पर कॉर्पोरेट पर्सन ने क्या किया, लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया, अब लिक्विडेटर आगे प्रोफेशनल्स अपॉइंट कर रहा है, यहां कॉर्पोरेट पर्सन ने लिखा। ठीक है, प्रोफेशनल्स को एंगेज करने के लिए ड्यूटी किसकी, कॉर्पोरेट पर्सन की नहीं लगाई, लिक्विडेटर। लिक्विडेटर। The liquidator shall not engage a professional under sub-regulation 1 who is his relative, related party of the CD, or has served as an auditor to the corporate person at any time during the 5 years preceding the liquidation। अच्छा, एक बात और आपने नोट की कि वॉलेंटरी लिक्विडेशन में हर जगह वर्ड कॉर्पोरेट पर्सन लिखता है, कॉर्पोरेट डेटा अचानक गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? देखिए किसका डिफॉल्ट नहीं है ना। हाँ, क्योंकि कॉर्पोरेट डेटर का डेफिनेशन दे रखा है, और कॉर्पोरेट डेटर और कॉर्पोरेट पर्सन में फर्क यही है कि कॉर्पोरेट पर्सन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट डेटर वो है जिसका डिफॉल्ट है। ठीक है ना, तो इसलिए डिफॉल्ट नहीं है, इसलिए यहां वर्ड जो है कॉर्पोरेट पर्सन यूज किया।
A professional engaged or proposed to be engaged under sub-regulation 1 shall disclose the existence of any pecuniary or personal relationship. ठीक? Consultation with stakeholders. The stakeholders consulted under section 35(2) shall extend all assistance and cooperation to the liquidator to complete the liquidation of the corporate person. The liquidator shall maintain the particulars of any consultation with the stakeholders made under this regulation. ठीक है, चलिए एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ये सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 हम पहले ही पढ़ चुके हैं. इफ दे रिक्वायर द कॉर्पोरेट पर्सन टू मेक एक्सॉर्बिटेंट पेमेंट्स और आर अनक्वेश्चनेबल अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स. तो अगर ऐसी कोई एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो एप्लीकेशन लगाएगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट बाय द लिक्विडेटर. The liquidator shall make a public announcement in Form A of Schedule 1 within 5 days of his appointment. ठीक है, तो Form A में इसको public announcement करनी है. The public announcement shall call upon the stakeholders to submit their claims. ठीक है, तो ये claims आ रहे हैं इसमें as on the liquidation commencement date and provide the last date for submission of claims which shall be 30 days from the liquidation commencement date. और announcement होगी in one English and one regional language newspaper. On the website if any designated by the board. ठीक है. Proof of claim. Claims by operational creditors Form B. ठीक है. Claims by financial creditors Form C. Claims by workmen employees Form D और numerous workmen Form E. ठीक है, चलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 18(4). ये क्या कहता है, द लिक्विडेटर शैल एडमिट द क्लेम्स ऑफ ए वर्कमैन और एन एम्प्लॉई ऑन द बेसिस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन इफ सच वर्कमैन और एम्प्लॉई हैज नॉट मेड अ क्लेम. ठीक है. क्लेम्स बाय अदर स्टेक होल्डर्स. ए पर्सन क्लेमिंग टू बी ए स्टेक होल्डर अदर देन दोज अंडर रेगुलेशन 16, 17 और 18 shall submit proof of claim to the liquidator in person by post by electronic means in form F. ठीक है, तो ये फॉर्म F के अंदर सबमिट करेगा. ठीक है. Existence of claim of the stakeholder may prove record available with information utility any other relevant document. ठीक है. An order of payment of a code, documentary or electronic evidence of his shareholding. ठीक है. An order of a court, tribunal or other authority. Proving security interest. The existence of a security interest may be proved by a secured creditor on the basis of the records available in an information utility, certificate of registration of charge, certificate of registration with SARSAI, other relevant documents. Substantiation, cost of proof, determination, debt in foreign currency, periodical payments, debt paid at future. ये सब सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है. वेरिफिकेशन के लिए फिर इसको यहाँ 30 डेज मिल गए. ठीक है. रेगुलेशन 29 क्या कहता है, द लिक्विडेटर shall verify the claim submitted within 30 days from the last date for receipt of claims and may either admit or reject the claim in whole or in part as the case may be as per section 40 of the code. A creditor may appeal to the adjudicating authority against the decision of the liquidator as per section 42. ठीक है. List of stakeholders. The liquidator shall prepare a list of stakeholders on the basis of proofs of claim submitted and accepted. ठीक है. क्या क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम एडमिटेड इफ एप्लीकेबल, एक्सटेंट टू विच द डेट्स और ड्यूज आर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, डिटेल्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड प्रूफ्स एडमिटेड और रिजेक्टेड इन पार्ट एंड द प्रूफ्स होली रिजेक्टेड. The liquidator shall prepare the list of stakeholders within 45 days from the last date for receipt of claims. ठीक. Provided that where no claim from creditors has been received till the last date for receipt of claims, the liquidator shall prepare the list of stakeholders within 15 days from the last date for receipt of claims. ठीक है. अदरवाइज 45 डेज है और अगर कोई क्लेम आया ही नहीं तो फिर 15 डेज. हो सकता है ना कोई क्रेडिटर हो ही नहीं. The list of stakeholders as modified from time to time shall be available for inspection by the persons who submitted proofs of claim, available for inspection by members, partners, directors and guarantors of the corporate person, displayed on the website and displayed on the website if any designated by the board.
रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स कैसे होगा? द लिक्विडेटर में वैल्यू एंड सेल द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन इन द मैनर एंड मोड अप्रूव्ड बाय द कॉर्पोरेट पर्सन। ठीक है, तो मैनर एंड मोड भी कौन अप्रूव कर रहा है? कॉर्पोरेट पर्सन। ठीक है, इन कंप्लायंस विद प्रोविजंस इफ एनी इन द एप्लीकेबल स्टैट्यूट। Explanation: assets include an assets, all assets, a set of assets or parcel of assets as the case may be in relation to sale of assets. Recovery of money is due. The liquidator shall endeavor to recover and realize all assets of and dues to the corporate person in a time-bound manner for maximization of value for the stakeholders. Proceeds of liquidation and distribution of proceeds. All money is to be paid into bank account. एक बैंक अकाउंट खोल करके और उसमें क्या वर्ड रहेगा? इनवॉलेंट्री लिक्विडेशन इन ए शेड्यूल्ड फंड। द लिक्विडेटर शैल पे टू द क्रेडिट ऑफ द बैंक अकाउंट ऑल मनीज इंक्लूडिंग चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट्स। ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ ईच डे टू बी डिपॉजिटेड विदाउट एनी डिडक्शन नॉट लेटर देन द नेक्स्ट वर्किंग डे। ठीक है, द मनीज इन द क्रेडिट ऑफ द बैंक अकाउंट शेल नॉट बी यूज्ड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 53(1). तो 53(1) यहां पर भी एप्लीकेबल है क्योंकि 35 to 53 इसने एप्लीकेबल कर दिया। ठीक है, all payments out of the account by the liquidator above 5,000 rupees shall be made by checks drawn or online banking transactions against the bank account। ठीक है, चलिए डिस्ट्रीब्यूशन। The liquidator shall distribute the proceeds from realization within 30 days from the receipt of the amount to the stakeholders। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कब है? within 30 days। 30 days from the realization। ठीक, the liquidation cost shall be deducted before such distribution is made। The liquidator may, with the approval of the corporate person, distribute among the stakeholders an asset that cannot be readily or advantageously sold due to its peculiar nature or other special circumstances। तो यहां पर भी अप्रूवल किसका हो गया? कॉर्पोरेट पर्सन का। ठीक है, अब देखो कभी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास गया ही नहीं है ना, रिटर्न ऑफ मनीज। अब आगे आएगा, लास्ट में आएगा कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन के बाद में कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का किसी किसी स्पेयरिंग केसेस में रोल है। स्टेक होल्डर शेल फोर्थ, अगर किसी को पैसा एक्स्ट्रा मिल गया तो वापस कर देगा। कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन, द लिक्विडेटर शेल एंडेवर टू कंप्लीट द लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन एंड सबमिट द फाइनल रिपोर्ट अंडर रेगुलेशन 38 विद इन कितने दिन के अंदर करना है इसको? 270 डेज। ठीक है, 270 दिन है। वेयर द क्रेडिटर्स हैव अप्रूव्ड द रेजोल्यूशन, इसका मतलब अगर क्रेडिटर हैं उन्होंने अप्रूव किया है तो 270 डेज है और 90 डेज है फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट इन ऑल अदर केसेस। मतलब ये कि अगर कोई क्रेडिटर नहीं है तो फिर 90 डेज। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस कंटिन्यूइंग फॉर मोर देन द पीरियड स्टिपुलेटेड इन सब रेगुलेशन 1, अगर यहां से ज्यादा कंटिन्यू करता है 270 या 90 डेज से, तो क्या होगा? The liquidator shall hold a meeting of the contributories of the corporate person। ठीक है, कंट्रीब्यूटरीज की मीटिंग बुलाएगा विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड। और कंट्रीब्यूटरीज की डेफिनेशन आपको दे रखी है। कंट्रीब्यूटरीज की क्या डेफिनेशन है दोबारा देख लेते हैं एक बार। ये है कंट्रीब्यूटरी। कंट्रीब्यूटरी मीन्स ए मेंबर ऑफ ए कंपनी, पार्टनर ऑफ LLP and any other person liable to contribute towards the assets of the corporate person in the event of its winding up। तो सारे मेंबर्स ऑफ कंपनी और जो जितने भी पार्टनर है वो सारे कंट्रीब्यूटर्स में आ जाएंगे। ठीक है, उनकी मीटिंग इसको बुलानी है। फ्रॉम द एंड ऑफ 270 डेज और 90 डेज एज द केस में भी, उसके 15 दिन के अंदर। ठीक है, एंड देयर आफ्टर एट द एंड ऑफ एवरी सक्सीडिंग 270 डेज और 90 डेज एज द केस में भी, एज स्टिपुलेटेड इन सब रेगुलेशन 1 टिल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन। ठीक है, तो वो ये कहता है कि 270 दिन बाद या 90 डेज के बाद, ठीक है ना,
और फिर हर 270 या 90 दिन के बाद अगर चलता रहता है तो शैल प्रेजेंट एंड स्टेटस रिपोर्ट इंडिकेटिंग द प्रोग्रेस इन लिक्विडेशन। अब यहां पर देखो ये वर्ड जो क्वार्टरली था वो वर्ड क्वार्टरली हटा दिया, ठीक है। पहले वर्ड यहाँ क्वार्टरली था, अब वर्ड क्वार्टरली नहीं रहा। पहले था ना क्वार्टरली रिपोर्ट देनी है इसको, एनुअल रिपोर्ट देनी है, अब ये एनुअल रिपोर्ट क्वार्टरली रिपोर्ट ये सब हटा दिया। क्या कह दिया इन्होंने, स्टेटस रिपोर्ट। स्टेटस रिपोर्ट दे दीजिए इंडिकेटिंग प्रोग्रेस इन लिक्विडेशन, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, details of any assets that remain to be sold and realized, distribution made to the stakeholders, distribution of unsold assets made to the stakeholders, developments in any material litigation by or against the corporate person, filing of and developments in application for avoidance, ठीक है। reasons for completing the process, the reasons for not completing the process within stipulated time and the additional time required for the completion process. The status report shall enclose the audited accounts of the liquidation showing the receipts and payments pertaining to the liquidation since the liquidation commencement date. ठीक है। The liquidator shall file the status report with the board within 7 days of the meeting of the contributories. ठीक है, तो 7 दिन के अंदर आपको ये रिपोर्ट फाइल करनी है, ठीक है। और मीटिंग ऑफ कंट्रीब्यूटर्स आपको कब बुलानी है, मीटिंग ऑफ कंट्रीब्यूटर्स आपने पहले ही लिख दिया है इसमें, ठीक है। हर 270 दिन के 15 दिन के अंदर अंदर आपको मीटिंग बुलानी, ठीक है। और ये स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है विद इन 7 डेज ऑफ द मीटिंग ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स। उसके बाद में फाइनल रिपोर्ट। On completion of the liquidation process, the liquidator shall prepare the final report consisting of audited accounts of the liquidation showing receipts and payments pertaining to liquidation since the liquidation commencement date, and a statement demonstrating that the assets of the corporate person has been disposed of, the debt of the corporate person has been discharged to the satisfaction of the creditors, no litigation is pending against the corporate person, or sufficient provision has been made to meet the obligations arising from any pending litigation। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि ऐसा भी हो सकता है कि वॉलेटरी लिक्विडेशन खत्म हो गया और लिटिगेशन फिर भी पेंडिंग है, ठीक है। ए सेल स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एसेट्स containing the realized value, cost of realization if any, manner and mode of sale, an explanation for the shortfall if the value realized is less than the value assigned by the registered valuer in terms of the valuation of assets, ठीक है। जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने वैल्यू दी थी उससे अगर कम रियलाइज हुआ तो एक्सप्लेनेशन चाहिए फॉर द शॉर्टफॉल, ठीक है। The person to whom the sale is made and any other relevant details of the sale. The liquidator shall send the final report to the registrar and the board. ठीक, the liquidator shall submit the final report and compliance certificate in form H along with the application under subsection 7 of section 59 to the adjudicating authority। तो यहां पर adjudicating authority का गया, ठीक है। तो adjudicating authority को इसने क्या दिया, फाइनल रिपोर्ट और कंप्लायंस सर्टिफिकेट, ठीक है। कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट, द बोर्ड शैल मेंटेन एंड ऑपरेट एन अकाउंट टू बी कॉल्ड द कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट विद ए शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। और यहां पर जो अनक्लेम डिविडेंड से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसीड्स है वो सारा का सारा सेम ही है प्रोसीजर आपका, ठीक है। अब इसमें ये है कि अगर अगर आपका ये फॉर्म ये वहां से रिसीट ले लेगा और फॉर्म जी में दे देगा ये सेटिंग फॉर द नेचर ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड एंड द नेम्स एंड लास्ट एड्रेसेस नोन, ठीक है। और अगर डिसोल्यूशन से पहले हो जाए तो फॉर्म आई में स्टेक होल्डर इससे क्लेम कर सकता है लिक्विडेटर से, और उसके बाद में फिर जो है बोर्ड से क्लेम कर सकता है। 15 साल तक इसमें रहेगा, इसके बाद कंसोलिडेटेड फंड में चला जाएगा, ठीक है। चलिए।
ये सारे प्रोविजंस ऑलमोस्ट सेम है। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड इंसॉल्वेंसी, रेगुलेशन 40, यहां पर भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का रोल है कि वेयर द लिक्विडेटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द लिक्विडेशन इज बीइंग डन टू डिफ्रॉड ए पर्सन, ठीक है, he shall make an application to the adjudicatory authority to suspend the process of liquidation and pass any such order as it deems fit, ठीक है। तो ये इन्होंने लिख दिया where the liquidator is of the opinion that the corporate person will not be able to pay its debts in full। तो दो बातें, या तो डिफ्रॉड इंटेंशन है या फिर ये कि will not be able to pay its debts in full, ठीक है। तो उस केस में भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगा देगा टू सस्पेंड द प्रोसेस, ठीक है। तो ये दो केसेस हो। इसके अलावा कब गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास? ऑन कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है, फॉर फाइनल रिपोर्ट। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, द लिक्विडेटर शैल प्रिजर्व कॉपीज ऑफ ऑल सच रिकॉर्ड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू गिव ए कंप्लीट अकाउंट ऑफ द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस, ठीक है। रिकॉर्ड्स में क्या क्या रिकॉर्ड रखने हैं, ये सारी बातें, अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, इनिशिएशन, ये सारी बातें इसको रखनी है, ये सारे रिकॉर्ड्स इसको रखने हैं, ठीक है। कितने पीरियड के लिए? मिनिमम 8 ईयर्स, और फिजिकल कॉपी रखनी है मिनिमम 3 ईयर्स, ठीक है। और रिप्लेसमेंट के केस में क्या होगा? द आउटगोइंग लिक्विडेटर शैल हैंड ओवर द रिकॉर्ड्स अंडर सब रेगुलेशन 1 and 2 टू द न्यू लिक्विडेटर, ठीक है। द लिक्विडेटर शैल along with the application filed under subsection 7 of section 59 to the adjudicating authority provide the details and manner of preservation of records under sub regulation 1 and 2। तो यहाँ पर डिटेल्स और मैनर ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स भी, भाई कहाँ पर उसने रखे हैं, क्या लोकेशन है, किस फॉर्म में रखने हैं, ये सारी बातें ये एप्लीकेशन जो लगाएगा ना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉर डिसोल्यूशन, उसमें ये सारी डिटेल्स देगा ये, ठीक है। The records referred to in this regulation includes records pertaining to the period of liquidation process during which the liquidator acted as such, irrespective of the fact that he did not take up the assignment from its commencement or continued the assignment till its conclusion। मतलब जितने पीरियड के लिए वो रहा उतने अपने रिकॉर्ड तो उसको रखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स, ये फॉर्म्स आपको क्या कब कब सबमिट करने हैं इसकी पूरी टेबल इन्होंने बना रखी है, ठीक है। क्या क्या फॉर्म्स है एक बार देख लेते हैं। एक तो है VL1, ये VL1 क्या है? दिस इंक्लूड्स द डिटेल्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन, डिटेल्स ऑफ द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आपको सबमिट करने हैं ये, ठीक है। VL1 कब सबमिट करना है आपको? VL1 सबमिट करना है आपको ऑन और बिफोर द 10th डे ऑफ द सेकेंड मंथ आफ्टर द पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन, डिटेल्स ऑफ द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस। उसके बाद VL2, डिटेल्स ऑफ मीटिंग ऑफ कंट्रीब्यूटरीज ऑन और बिफोर द 10th डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ आफ्टर द मीटिंग ऑफ कंट्रीब्यूटरीज और रिप्लेसमेंट ऑफ द लिक्विडेटर। फिर डिटेल्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑन और बिफोर द 10th डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। तो ये पीरियड भी दे रखा है और कौन कौन से फॉर्म देने हैं ये भी दे रखे। डिटेल्स ऑफ ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन, यहाँ पर ये 14th डे है, ऑन और बिफोर द 14th डे ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर, बाकी में 10th डे है, इसमें 14th डे है, ठीक है। द फाइलिंग ऑफ ए फॉर्म अंडर दिस रेगुलेशन आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन वेदर बाय करेक्शन, अपडेशन और अदरवाइज शैल बी अकम्पनीड बाय ए फीस ऑफ 500 रुपीज पर फॉर्म, ठीक है। जो भी ड्यू डेट दे रखी है 10th या 14th डे, उसके बाद में अगर सबमिट होता है तो 500 रुपीज पर फॉर्म है फॉर ईच कैलेंडर मंथ, ठीक है। The liquidator shall be liable to any action which the board may take as deemed fit under this code, including refusal to issue or renew authorization for assignment, for failure to file a form within the with the requisite information and records, ठीक है, या inaccurate or incomplete particulars या delay in filing the form, ठीक है। ये हमारे को फिर इन्होंने फॉर्म दे रखे हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट का फॉर्म है ये, फॉर्म ये है आपका पब्लिक अनाउंसमेंट।
इसमें जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उन्होंने अपने क्लेम्स कैसे देने हैं, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ओनली। ठीक है, जो अदर हैं वो दे सकते हैं बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या इन पर्सन। ठीक है, ये फॉर्म बी हो गया, प्रूफ ऑफ वर्कमैन। ये फॉर्म सी हो गया, प्रूफ ऑफ क्लेम बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। अब आप यहां देखिए, यहां पर वो कहीं सिक्योर्ड क्रेडिटर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की बात नहीं करता। ठीक है, जैसे लिक्विडेशन में क्या कहा था उसने, लिक्विडेशन में कॉलम 8A दे रखा था, है ना, रियलाइज करना है या रिलिक्विश करना है। यहां ऐसी कोई बात करता नहीं वो। भाई बेसिकली यहाँ यहाँ क्या है, यहाँ उसको पूरे पैसे मिल ही जाने हैं, यहाँ कोई डिडक्शन तो होना नहीं है ना। भाई अदर स्टेक होल्डर, ये प्रूफ ऑफ अनक्लेम डिविडेंड्स है आपका, वेरी कंप्लायंस सर्टिफिकेट। ये फिर सारी डेट्स दे रखी हैं आपको 270 डेज के हिसाब से। ठीक है, वॉलेंटरी लिक्विडेशन। तो सबसे पहले क्या है, डिक्लेरेशन फ्रॉम मेजोरिटी। डिक्लेरेशन आपको देना है, और डिक्लेरेशन के 4 वीक्स के अंदर फिर आपको रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। तो आपको जो टी डेट है उससे 28 दिन पहले डिक्लेरेशन देना है, इसलिए T-28 लिख दिया इन्होंने। ठीक है, फिर पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, ये 0 डेट दे दी आपने। अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर हो गया विद इन 7 डेज। इंटीमेशन बाय द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये भी विद इन 7 डेज हो गया टू द बोर्ड। ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया विद इन 5 डेज। ठीक है, नोटिफिकेशन टू रजिस्ट्रार विद इन 7 डेज। ठीक है, और T+14, क्योंकि 7 डेज के अंदर सब्सिक्वेंट अप्रूवल है ना। सबमिशन ऑफ क्लेम्स 30 डेज के लिए है। विड्रॉल या मॉडिफिकेशन ऑफ क्लेम बाय स्टेक होल्डर, ये आपका T+44। एक दो बातें और बता दीजिए, ये वॉलंटरी लिक्विडेशन एक बार स्टार्ट हो गया तो क्या विड्रॉ भी हो सकता है, क्योंकि विड्रॉल के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं कहीं। एक बार आपका वॉलंटरी लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो क्या ये विड्रॉल भी हो सकता है या नहीं हो सकता। नो सर। भाई देखो, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन तो है नहीं, लेकिन अगर शेयर होल्डर अप्रूव कर सकते हैं तो शेयर होल्डर उसके लिए भी कर सकते हैं अप्रूव, विड्रॉल के लिए भी कर सकते हैं। शेयर होल्डर का ही अप्रूवल चाहिए ना। यस सर। ठीक है। Submission of preliminary report to the corporate person, verification of claims, intimation about decision of the acceptance, rejection of claim to the stakeholder, preparation of the list of stakeholder, appeal by credit। इस पे केस लॉज भी हैं, थोड़ा केस लॉ पूजा जी एक बार देखिएगा, केस लॉज आपको मिल जाएगा। और विड्रॉल, अपील बाय ओके। क्रेडिटर, एक्चुअली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाते हैं उस केस में ये, क्योंकि हमारा सेक्शन बाई 60, सेक्शन 60 सब सेक्शन 61 तो है ही ना। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या कहता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कहता है कि भाई कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, एनी क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ और इन रिलेशन टू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स, तो सेक्शन 60 सब सेक्शन 5 में कवर हो जाता है ये। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन अराइज हो तो आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्रोच करना पड़ेगा, तो वो जो उसका डिसीजन हो। सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट टू द बोर्ड 90 डेज, अगर कोई क्रेडिटर नहीं है, अदरवाइज 270 डेज।
ठीक है, सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट, कंप्लीशन ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन एंड मीटिंग ऑफ कंट्रीब्यूटरीज। मीटिंग ऑफ कंट्रीब्यूटरीज आपका जो है ये आपका 270 के 15 डेज के अंदर है। ठीक, चलिए, डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन पेंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस, ये हो ही गया। एक बात और बता दीजिए, क्या शेयर होल्डर भी अपना क्लेम सबमिट करेंगे? Yes, no, yes. यस, दे विल ऑल्सो सबमिट, क्योंकि वो अदर स्टेक होल्डर्स में आ जाएंगे ना। भाई स्टेक होल्डर में कौन आ रहा है? स्टेक होल्डर में आ रहा है जिसको 53 में मिलना है, 53 में तो शेयर होल्डर को भी मिलना है। एक और बात भी है, वहां पर क्या लिखा हुआ है, उन्होंने खास तौर से लिखा हुआ है कि डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डिंग, वहां पे भी आपको इनडायरेक्ट रेफरेंस मिलता है इसका। आप ये देखो कि जो क्लेम्स जहां पर थे ना, हम पढ़ रहे थे, अदर स्टेक होल्डर्स में। हाँ, अदर स्टेक होल्डर में क्या क्या है, वो कहता है डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डिंग दीजिए आप। तो डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डिंग से आपको आइडिया लग गया कि भाई क्या है डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डिंग में, क्या क्या देना है आपको। डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक हम्म, एविडेंस ऑफ हिज शेयर होल्डिंग। हाँ, ये आ गया ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये शेयर होल्डर को भी एंटरटेन करेगा, अदर स्टेक होल्डर्स में। ठीक है जी। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर कॉर्पोरेट पर्संस, ये भी 2-4 सेक्शन है, फटाफट देख लेते हैं, अभी तो टाइम है मेरे ख्याल से। टाइम है ना, अभी तो काफी टाइम है। ठीक, ये 2-4 सेक्शन और देख लेते हैं। सेक्शन 60, सेक्शन 60 क्या बोलता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर कॉर्पोरेट पर्संस, कि भाई कॉर्पोरेट पर्संस के लिए क्या है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? एनसीएलटी है। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन रिलेशन टू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्संस इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट डेटर्स एंड पर्सनल गारंटर्स। तो पर्सनल गारंटर्स के भी, चाहे एक इंडिविजुअल ने गारंटी दी है, उसके लिए भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होगी? एनसीएलटी। ठीक है, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल है, उसने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई लोन लिया है, तो फिर उसके लिए डीआरटी होगी। ठीक है, उसके लिए एनसीएलटी नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअल है, उसने गारंटी दी है, तो फिर वो एनसीएलटी उसके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होगा? वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन इज लोकेटेड। ठीक है, उसके बाद में विदाउट प्रेजुडिस टू सबसेक्शन 1 एंड नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन दिस कोड। ठीक है, क्योंकि हमारा एक सेक्शन 179 भी है, 179 बात करता है इंडिविजुअल्स की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, नॉन कॉर्पोरेट पर्सन की। तो ये सेक्शन वहां पर भी लिख दिया सब्जेक्ट टू सेक्शन 60। यहां क्या लिखा? विदाउट प्रेजुडिस टू सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में क्या लिखा कि कॉर्पोरेट पर्संस और पर्सनल गारंटर्स के लिए एनसीएलटी है। अब 2 में बोलता है विदाउट प्रेजुडिस टू सबसेक्शन 1 एंड नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन दिस कोड वेयर ए सीआईआरपी और लिक्विडेशन इज पेंडिंग बिफोर एनसीएलटी। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी की सीआईआरपी या लिक्विडेशन वाली प्रोसीडिंग पेंडिंग है, एप्लीकेशन पेंडिंग है, एन एप्लीकेशन रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी ऑफ ए कॉर्पोरेट गारंटर और पर्सनल गारंटर इन द केस में भी ऑफ सच कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, शैल बी फाइल्ड बिफोर सच एनसीएलटी। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड या लिक्विडेशन या बैंक्रप्सी से रिलेटेड किसकी, जो कॉर्पोरेट गारंटर है या पर्सनल गारंटर है, तो वो भी यहां पर आएगी एनसीएलटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर सीआईआरपी लिक्विडेशन पहले शुरू हो गई, ये एप्लीकेशन बाद में लग रही है। सेक्शन 60 सबसेक्शन 1 में कौन से केसेस कवर होंगे? भाई ऐसा भी हो सकता, देखो जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑफ द गारंटर इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द बोरोवर, है ना, एज पर सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ऐसा भी हो सकता है कि पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट में डायरेक्टली एप्लीकेशन लगाओ, तो वो सेक्शन 60 सबसेक्शन 1 में आ जाएगी। ठीक है, सेक्शन 60 सबसेक्शन 2 में कौन से केसेस कवर होंगे? सीआईआरपी या लिक्विडेशन ऑलरेडी चल रही है और पर्सनल गारंटर की इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी आपको शुरू करनी है, तो वो सेक्शन 60 सबसेक्शन 2 में कवर हो जाए। ठीक है, सेक्शन 60 सबसेक्शन 3, एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स ऑफ ए कॉर्पोरेट गारंटर और पर्सनल गारंटर एज द केस में बी पेंडिंग इन एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल
shall stand transferred to the adjudicating authority dealing with the insolvency resolution or liquidation proceedings of such corporate debtor. ऐसा भी हो सकता है कि ये कहीं अलग कोर्ट में पड़ी हो या ट्रिब्यूनल में हो, ठीक है। ये कौन से केसेस कवर कर रहा है? ये कवर कर रहा है जब आईबीसी नहीं आया था। आईबीसी नहीं आया, मान लो किसी गारंटर के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है डीआरटी में, तो वो भी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। जो उस सीडी की, बेसिकली दे वांट टू कंसोलिडेट द प्रोसीडिंग्स। द एनसीएलटी shall be vested with the powers of the DRT as contemplated under part 3 for the purposes of subsection 2। क्योंकि subsection 2 में क्या बोला भाई, नॉर्मली तो क्या होता है कि इंडिविजुअल्स के लिए या नॉन कॉर्पोरेट पर्सन के लिए डीआरटी है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि एनसीएलटी के पास डीआरटी की पावर आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, 3-4 सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन, पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट में डायरेक्टली प्रोसीड कर दिया तो भी एनसीएलटी में चलेगी 60 सबसेक्शन 1। पहले सीआईआरपी लिक्विडेशन शुरू हो गया, बाद में पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट में शुरू किया 60 सबसेक्शन 2। 60 सबसेक्शन 3 क्या है? आईबीसी के आने से पहले कोई प्रोसीडिंग चल रही है किसी कोर्ट में, है ना, या ट्रिब्यूनल में, बाद में आईबीसी में आ गए सीआईआरपी लिक्विडेशन में, तो वो भी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और 60 सबसेक्शन 4 में क्या बोला कि एनसीएलटी के पास वो डीआरटी वाली पावर मान ली जाएगी। 60 सबसेक्शन 5 जहां पर मैक्सिमम एप्लीकेशन लगती है, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the timing in force, NCLT shall have jurisdiction, and NCLT के पास jurisdiction है to entertain or dispose of, पहला, any application or proceeding by or against the corporate debtor or corporate person, ठीक है। यहाँ corporate person क्या कर लिया, लिक्विडेशन वाले केसेस भी कवर कर लिए, ठीक है। Any claim made by or against the corporate debtor or corporate person, including claims made by or against any of its subsidiaries situated in India। कोई क्लेम है, ठीक है, बाई और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर और कॉर्पोरेट पर्सन, तो वो भी एनसीएलटी में। एनी क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ और इन रिलेशन टू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स, तो वो भी कहा जाएगा एनसीएलटी में। Notwithstanding anything contained in the Limitation Act or in any other law for the timing in force, in computing the period of limitation specified for any suit or application by or against a CD for which an order of moratorium has been made, the period during which such moratorium is in place shall be excluded, ठीक है। मतलब किसी में मोरेटोरियम की वजह से अगर आप नहीं कर पाए तो फिर वो लिमिटेशन पीरियड उतना एक्सटेंड हो जाएगा। 61 बोलता है अपील्स एंड अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। तो आपको पास अपीलेट अथॉरिटी एनसीएलएटी है, और एनसीएलएटी के पास आपको अपील फाइल करनी है विद इन 30 डेज, ठीक है। और एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा अनदर 15 डेज का। An appeal against an order approving a resolution plan under section 31 may be filed on the following grounds। यहां पर ग्राउंड्स स्पेसिफाइड है, सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पर ही एप्लीकेशन फाइल हो सकती है अपील में। आपको इसमें से फिट इन करना पड़ेगा किसी एक केस में। नंबर 1 क्या है? अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान इज कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन। अगर आप रेजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव हो गया एनसीएलटी से, अब आप एनसीएलटी में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इनमें से कोई ग्राउंड लेना पड़ेगा। पहला ग्राउंड क्या है कि इट इज इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। दूसरा, देयर हैज बीन मटेरियल इरेगुलरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स बाय द आरपी अगेंस्ट द ड्यूरिंग द सीआईआरपी पीरियड, debts owed to operational creditors of the corporate debtor have not been provided for in the resolution plan, ठीक है। वो सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है कि भाई कम से कम उनको लिक्विडेशन वैल्यू देनी है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर रीपेमेंट इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेट्स, और द रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट कंप्लाई विद एनी अदर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो आपको देना पड़ेगा रेगुलेशन कि भाई कौन से रेगुलेशन का वायोलेशन है, ठीक है। An appeal against a liquidation order passed under section 33 or subsection 4 of section 54L। 54L कौन सा? प्रीपैक, ठीक है। और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 54N may be filed on grounds of material irregularity और fraud committed। ये बेसिकली प्रीपैक की बात कर रहा है, जो हमारा नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे। An appeal against an order for initiation of CIRP
अंडर 54O मे बी फाइल्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ मटेरियल इरेगुलरिटी। उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में आपके पास 45 डेज है और फिर 15 डेज का एक्सटेंशन हो सकता है। सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। 64 ये कहता है कि भाई अगर कोई भी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं हुई या ऑर्डर पास नहीं हुआ विद इन टाइम लिमिट, तो दे शैल एक्सप्लेन द रीजंस, है ना, रीजन टू बी रिकॉर्डेड। एंड फिर क्या है, इनके पास पावर है, स्पेशल पावर है, किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ एनसीएलटी या चेयरपर्सन ऑफ एनसीएलटी, ठीक है, 10 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं, जो भी टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है। और उसके अलावा नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन और टू बी टेकन इन पर्सन्स ऑफ एनी पावर, ठीक है। फ्रॉडुलेंट और मिलिशियस इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सारे 55 ऑनवर्ड्स, ये है बेसिकली, ये पेनल्टी से रिलेटेड है, इनको हम अलग से करेंगे, ठीक है। आज की कथा यही समाप्त करते हैं। तो अगला सेशन हम करेंगे सैटरडे को, है ना। सैटरडे